Don't say that. I know, and listen, believe you me, today my experiences, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कॉलेज के बाहर हूँ, कोर्ट के बाहर हूँ. अरे साहब मोदी को लाते हो जरूर. This is the feeling in the people's mind today. Modi has become the idol of the people. लेकिन वही मोदी है जिसके बारे में कांग्रेस कहती है कि वो देश को बांट देंगे, वो सांप्रदायिक हैं, वो उनकी इमेज ये है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं. मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कांग्रेस ही है. जो हिंदुत्व की बात करता है वो सेक्युलर नहीं है. दिस इज टुडे द कांग्रेस प्रोपेगेंडा एंड द प्रोपेगेंडा ऑफ मेनी पीपल, मेनी पार्टीज who have their own notions about secularism. I am the lawyer who have fought the case in the Supreme Court, and the Supreme Court, I got a judgment from the Supreme Court that Hindutva is the core of India's constitution. हिंदुत्व हिंदुस्तान के संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका. टुडे कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं ये कम्युनल है. कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगत कहे कि मैं हिंदू हूं तो ये कम्युनल. दिस इज द फ्रॉड व्हिच इज बीइंग प्लेड. लेकिन एक मेरा दुश्मन बताओ जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि राम जेठमलानी इज कम्युनल. ये हुआ बाबरी मस्जिद का कांड. उस दिनों में जो मैंने राइटिंग्स लिखी है वो आप पढ़ो उसको. मैंने कहा कि मेरे ऊपर छोड़ो, मैं मुसलमान भाइयों को ऐसा समझाऊंगा इस राम मंदिर की हालत कि जब तक मुसलमान ईंट उठा के इसी मंदिर को बनाने में आके भाग नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं बनाऊंगा. You leave it to me. I will persuade the Muslims to accept the glory of Ram and to have the glory of this temple. These people don't have even, what do they go? They are not even proud of Hindutva, of which I am supposed to have made the Supreme Court say that Hindutva is the essence of India's constitution. लेकिन अभी मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा राम साहब, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की. मैं भी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि I am telling you. देखिए नरेंद्र मोदी is not communal. Please understand what has happened in Gujarat. 60 people, 60 or 58, 60 people were burnt alive in a railway compartment. कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि ये स्टव का एक्सीडेंट हुआ था. अरे गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, अगर आग लगती है तो गाड़ी से दरवाजा खोल के जंप करके बाहर आएंगे कि मरेंगे अंदर. दिस इज द कांग्रेस सेक्युलरिज्म. और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, गुजरात पुलिस नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर की. उन्होंने कहा कि नहीं, these rascals were all terrorists. They wanted to bring down the reputation of India, because at that time India और पाकिस्तान की तुर्शी चल रही थी बॉर्डर के ऊपर, और ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले थे, बदनाम करने वाले थे. एंड दे न्यू तो कुछ तो रिटेलिएशन होगा. अब हिंदू वैसे कुछ कीड़े तो नहीं हैं चुप करके बैठेंगे, कुछ रिटेलिएशन होगा जरूर. 60 innocent people burned. Burning is the most cruel form of killing a person. कुछ retaliation हुआ. Modi had become a new new chief minister. He can't control every sub-inspector, every inspector of police, every police station throughout the state. What happened? People retaliated. And I can tell you that night, that wife of that MP who got burnt ultimately, she telephoned to me. Jaffrey. And I telephoned to George Fernandez. He was the defense minister. Army ka tha na. So I told him, I said, George, please send the army to this woman's locality and go and. He didn't send the army. But nobody talks of George, but you talk of Modi. Modi was the new chief minister. He is not supposed to be head taking care of. चीफ मिनिस्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. उनके राज में राइट्स हुए, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मारे गए. Now
Please, why do you open up these wounds of history? What happened to the poor Sikhs in Delhi? You killed 3,000 Sikhs merely because, what did the Prime Minister of India say, Rajiv Gandhi? Oh, when a big tree falls, there must be a shake-up in the earth. What are you talking about? You are practitioners of genocide, these congressmen, rulers. What did you do to the Sikhs? And Modi has not gone and given these orders. Nobody has accused him of that. मैं पॉलिटिक्स की अगर बात करूं, सियासत की, मोदी की परसेप्शन की वजह से, इमेज की वजह से न तो ममता बनर्जी उनके साथ आएंगी, न नवीन पटनायक उनके साथ आएंगे, नीतीश कुमार साथ छोड़ के चले गए, तो कैसे बनाएंगे आप उनको प्रधानमंत्री? Pradhan Mantris are not made by Mamta and the names that you take. Pradhan Mantris are made by the people of India. The people of India love him. And Ram Jethmalani loves him. That's enough. लेकिन कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी में काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, वो सिर्फ गुजरात के लीडर हैं, बाहर उनका कोई असर नहीं है। और कहां के लीडर हैं जो एस्पायर कर रहे हैं? कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, राहुल गांधी हैं जो नेशनली नोन है। मैं राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा है आगे। अभी मेरे को क्यों, मैं जब ये नाम सुनता हूं तो मेरे को गुस्सा लगता है। I will not employ him as my managing clerk in my office. Rahul to be the Prime Minister of this country, thousands of people will migrate from this country.